تو آئیے کیسے لوگ ہوئیں گے تو یہ فکریں جائیں گی. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے. متی کے انجیل 13واں باب 47 سے. متی کے انجیل 13واں باب اس کی 47 آیت سے. جی آپ حکمت کریں گے. 13واں باب. آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جی جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لے، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لے، اور جو خراب تھی پھینک دی. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا. فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے. وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. جب میں نے اس پیسج کو پڑھا تو میں نے خدا کے سامنے رکھا کہ خداوند اس بھید کو مجھ پر ظاہر کر. شاگرد تو میں نے خداوند سے کہا کہ یہ مجھے تمثیل سمجھا کہ تو نے مچھلیوں ہی کی مثال کیوں دی ہے، نہ کسی اور پرندے کی، نہ کسی اور جانور کی، اور نہ کسی اور کی یہاں مثالیں رکھی ہے. کہ تو ان مچھلیوں کو جو اچھی ہوئیں گی برتنوں میں بھر لے گا، یہ مچھلیوں کو تو نے یہاں کیوں ڈال دی اس تمثیل میں؟ خدا نے کہا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں رہتی ہیں، اور جب تک پانی میں رہتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں. مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، ویسا ہی پانی چاہیے تو زندہ. جیسا ان مچھلیوں کو پانی چاہیے اور وہ زندہ رہیں، تو ایسا ہی پانی جن انسانوں کو کنڈی لگے گی. اور کس پانی سے نکالا جائے؟ پانی سے نکال کر کے زندگی کے پانی میں ڈالا جائے گا جہاں مرنا نہیں ہوگا. کیونکہ انسان، اس جہان کے لوگ کون سا پانی پیتے ہیں؟ کون سا پانی پیتے ہیں؟ وہی پانی پیتے ہیں جو سامری عورت پیا کرتی تھی. وہی پانی انسان پیتے ہیں. لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. خدا کے جلال سے محروم رہنے کا پانی پیتے ہیں. لکھا سب نے گناہ کیا. مسیح جب نہیں آیا تھا تو دنیا جلال سے محروم تھی کہ وہ برکت پائیں، وہ معجزے دیکھیں، ان کے مردے زندہ ہوں، لنگڑے چلیں، کوڑی پاک صاف ہوں. اس سے محروم ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ محرومیت ختم تھی نہیں تھی، کیونکہ لکھا گناہ کی مزدوری موت ہے. جو پانی سامری عورت پیتی تھی وہ ایسا پانی پیا کرتی تھی، ایسا پانی لینے کے لیے کنویں پر آتی تھی جس کی مزدوری موت تھی. تو خدا نے مجھے سکھایا کہ میں ایسا پانی دینا چاہتا ہوں. اس پانی کو ترک کریں، گناہ کی زندگی گزارنے والے حالات سے نکل کر ابدی پانی میں چلے جائیں جہاں زندگی ہے. اب آئیے خداوند کیسی مچھلیاں چاہتا ہے. لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا جال ڈالے گا جیسے کوئی
कोई मछलियाँ पकड़ने वाला डालता है, और जो बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं वो जाल में नहीं आती हैं। अब देखिए, जब खुदा जाल डालेगा तो कोई मछली छुप ना सकेगी गार में या पत्थरों में, कहेगी जरूर आसमानों हम पर, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, मसीह के गजब से बचा लो। ये कौन है? गंदी मछली है। गंदी मछली क्या कहेंगी? गार है मत हमें छुपा लो, अरे कट्टी लो हमें छुपा लो। हाँ, हमने उसको जला नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो पानी गंदा पीते हैं उनका ये हाल बताया गया है। लेकिन जो मछलियाँ जिंदगी के पानी में आ चुकी हैं, सामरियों से क्या कहा? सामरियों से क्या कहा? अगर तू ये मुझे पानी पिलाए जिस मकसद को, गुनाह को लेने के लिए आती, यहाँ पीने के लिए आती है, ये मुझे दे दे, मेरे प्याले में डाल दे, मैं अभी प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। सलीब पर चढ़ कर यही कहा था, मैं प्यासा हूँ। यानी अब और की दुनिया जो पैदा होगी अकेले ऐसा गंदा पानी पिएगी ना, मैं मौका देता हूँ, और जो बढ़ेंगे वो मैं मौका देता हूँ मेरे प्याले में डालो, मैं आपके उनके लिए प्यासा हूँ, ये पानी मुझे दे दे तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगी। साथ के लिए पला मुझे पानी, मैं कभी प्यासी ना। कहता अच्छा जा अपने शौहर को बुला, ये सब आप जानते हैं। मैंने कहा मेरा तो शौहर ही कोई नहीं, इकरार नहीं किया, गुनाह को छुपाती है। कलाम में तो ये लिखा है, जो अपने गुनाह को छुपाते हरगिज़ कामयाब है। बाबा कर उठो, आपके दर्द है, मेरे दर्द हो गई, तो यहाँ क्यों ये दर्द छुपा लेते हैं? गुनाह के दर्द छुपाते हैं लोग। पेट में दर्द है, मेरा दर्द है पेट में, इसके लिए बाबा कर उठते हैं। और गुनाह का दर्द जो अपनी मौत देते हैं, क्या रोना दांतों का मिश्रण ले जाता है, इसका इकरार क्यों नहीं करते? लिखा है जो अपना इकरार करता है, अपने गुनाह को छुपाता है, हरगिज़ कामयाब। ऐसा जो इकरार करता है उसे इकरार करना पड़ा, उसे जिंदगी का पानी मिल गया था। ये वो पानी था, खुदा शुरू अज़ल ही से जिंदगी का पानी रखता है, और वही जिंदगी का पानी लेकर खुदा कुएं पर बैठा है। वही जिंदगी का पानी था। अगर तुम मुझे बुलाए तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा, बल्कि नदियां जारी कर दूंगा। लूका के इंजील में लिखा हुआ है, 15वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, वो कौन औरत है, वो कौन औरत है जिसके पास 10 सिक्के हैं, एक खो गया, यानी खो गया, डिहाइड्रेशन हो गई। वो चिराग जलाकर, कलाम चिराग उसके मुताबिक देखती है मैंने कौन सी गलती की है। वो झाड़ू लेती है, झाड़ू ऐसे खड़ा होकर नहीं दिया जाता है, झाड़ू झुक के दिया जाता है। बेटियां आई, बहनें आई, दुआ कर रही हैं झुक के, यानी ये झाड़ू इससे मुराद है वो अपने अंदर से इसको निकालने के लिए, इस लीकेज को बंद करवाने के लिए झुक जाती है। मुझसे ये गलती हुई है, मेरा सिक्का गुम हो गया, वो ढूंढ लेती हैं, फिर क्या करती हैं, कलीसिया के अंदर खुशी करती है, खुशी करती हैं। यीशु मसीह ने यह तरीका बता दिया है, ये डिहाइड्रेशन का तरीका बता दिया है, ड्रिप का तरीका बता दिया है, बहाली का तरीका बता दिया है, फिर से यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करने का तरीका बता दिया है। लेकिन ऐसे भी गुनाह है जिनकी माफ़ी नहीं है, खबरदार रहिए, ऐसे में कसूर हो जाए माफ़ी है, गुनाह हो जाए तो माफ़ी
नामांकन है। खबरदारी ये रही, कलीसिया की तैयारी अब ज़रूरी है। हालात और वाक़यात बताते जान होते हैं कि यीशु मसीह की आमद कितनी करीब है। अगर 1000 साल भी लगते हैं, लोग कहते रहते हैं कि क्या फलाना साल में आ जाएगा, फलाना साल में आ जाएगा। अब थोड़े दिन है भाई, खबरदार खबरदार। अभी तो 2 ही मोहरें खुली हैं, सफ़ेद खुली घोड़े के आग, लाल घोड़े की। अभी तो काला घोड़ा 666 का अदद लगना है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? हाँ, येलो घोड़ा आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1000 साल बात नहीं होगी। तो क्या मतलब है? 1000 साल तो भी बाकी है। कलाम को देखिए, तफसीरों को लोगों को ना देखिए, गोरों कालों की तफसीरें ना देखिए, कलाम को देखिए। मैं कलाम से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, ना घटा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बलाएं नाज़िल होगी कलाम में जो लिखी हुई है। अभी 1000 साल बाकी है, लेकिन आप 1000 साल नहीं जिएंगे, आप 2000 साल नहीं जिएंगे, 4000 साल नहीं जिएंगे। पता नहीं 1 सेकंड मिले, 10 सेकंड मिले, 10 महीने या 10 साल मिले या 50 साल मिले, आपको इस पीरियड में अपने खुदा को अपने साथ निपटाए रखना। आपको जिंदगी के पानी में ये वक्त गुजारना है। ये आपको ज़िंदगी का पानी ईमानदारों मिल चुका है, आप इससे कभी दूर ना रहना। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे हो रहे प्यासे हैं, आप उसमें रहना है। अगर आप रहेंगे तो यकीन है खुदा आपको बरकत देगा। आज खुदा बरकत देने के लिए आया, लाना देने के लिए नहीं आया। उसने कहा कि मैं खिदमत बुला के दी, बोल के दी, सामने खड़े होकर दी। 5 दफ़ा मैं यीशु मसीह को अपने रूबरू देख सकूं। बातें का न सिर्फ देखा बल्कि बातें की हैं। क्यों? क्यों? इस उम्र में तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। इस उम्र में तो मुझे क्या होना चाहिए? बेटा पानी बेटा आज मेरी, और यही होना चाहिए ना। ये कौन है? ये कौन है? यीशु है जो आपको लेके चलता है। इस उम्र में खुदा इस कदर मैं चाहता हूँ कि वो यीशु आपको भी मिले और रहे। ये लड़का खड़ा हो जाए, ये देख रहे हैं, ये मेरा पोता है। अब वो खिदमत में नहीं, कलाम में बहुत मगन है। ये मर गया था, ये माँ उसकी बेटी पूछो इनका का बच्चों को मुझे दे दो। रात को ये टाइम था सुबह 4 बजे का, सुबह 25 थी दिसंबर है। मुझे दे दो, जाओ कर सो जाओ। बच्चे को मेरी गोद में रखा, मैं कहा ये बच्चा लेके आया। एक वो बड़ा पेपर होता है जो जिस पर लिखा जाता है, चार्ट जैसा एक पेपर ऐसे सफ़ेद आ गया, इसके ऊपर से ऐसे आ गया और लाल रंग का उसके ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा? यीशु 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 यीशु। जब पेपर ऐसे हुआ तो लड़का जी उठा, मैंने कहा ले लो, ये ले लो, ये 20 साल का है। थैंक यू। ये कौन है? ये कौन है? हालेलुया। एक जगह एक लड़का मर गया। उसकी बहन भागती मेरे पास आई कि मेरा भाई मरने के करीब है, जल्दी आइए। वो ईमानदार लोग थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका दादा कहने लगा भाई को मत बुलाओ, बच्चा मर गया। मैंने कानों से सुना, मैं उसके पीछे आया, मैं उस बच्चे के छाती पर, यीशु के नाम में
वो उठा और कराची काम करने वाला बन गया। ये कौन है? ये कौन है? यीशु बोलेगा तो उसे यीशु। हालेलुया। मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, गुनाह में मरे हुए लोगों, अपने गुनाह का इकरार करो। अपनी कमजोरियां में रहने वाले लोगों, इकरार करो। छलांग लगाओ पानी में, पानी हिल रहा है, छलांग लगा दो, जिसका मौका मिलता है जी जाओ, शिफा पालो। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा खुदा है। अपने यीशु को ये कहने की बातें नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है। खुदा ने अपने खातमों को मकसद के लिए भेजा हुआ है। उसने कहा जाओ, सांपों बिच्छू को कुचलो, बदलू को निकालो। कहाँ है वो खातम? क्या कमजोरियां निकाले अपने अंदर से, बदलू हमसे है। गालियां भी बदल हुए हैं, चोरी भी, लड़ाई भी, झगड़े भी, फिल्में देखना, बाइबल को पढ़ते नहीं, टीवी पर अपने पर, ये सारे बदल हुए हैं। याद रखो, बदल हुए हैं। खबरदार बेटियों, खबरदार बेटो, वक्त आने वाला है, जाल पड़ने वाला है। आप जब इस दुनिया में चले गए, आपके ऊपर जाल पड़ गया। अगर आप गंदी मछली हुए, आपकी भट्टी में, आप अच्छी मछली हुए, फिरदौस में हालेलुया। अपने आप को बचा लो, अपनी कमजोरियों से निकलो। खुदा यही चाहता है। आजकल खुदा मुझे कलीसिया को तैयार करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं ऐसी तालीम देता हूँ कि आप निकले, कमजोरी से निकले। डॉक्टरों के पास जाते हो, विटामिन मिलते हैं, ड्रिपें लगते हैं, टीके लगते हैं, दवाइयाँ मिलते हैं। अब यीशु के पास क्यों नहीं आते? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। हालेलुया, कोई पैसा नहीं। आज भी आप लोगों के अंदर अगर कोई गुनाह की बारिश, ऐसी बीमारी लग गई है, आप इकरार कीजिए, छूटिए, आ जाइए यीशु के पास। वो आपको उस बीमारी से आज़ाद कर देगा, आपको बेबत्ती से आज़ाद कर देगा, आपको बुरे हालात से आज़ाद कर देगा। बख्तों के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, शर्त पहली यीशु को कबूल करने की है। जिन्होंने कबूल करके भी अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं, चर्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर काली भेड़ें, चितकबरी भेड़ें बनी हुई हैं। धुल जाइए यीशु के लोग से, मौका है, सिक्का गुम हो गया है, मिल जाएगा। आप उसके बायस कोई मुश्किलात में है, आप खड़े हो सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। आपके लिए आज भी यीशु मौजूद है। वो मर गया था लेकिन जिंदा हो गया और जिंदा है। वो आया हुआ है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, क्या होगा? हमारे चने खाने के लिए आएगा, नान चने खाने के लिए आएगा। हाँ जी, क्या वो हमारे बुनियादी खाने पाएगा? कौन सी बहन अच्छी बुनियादी पकाती है? कौन सी बहन अच्छी सब्जी पकाती है? वो खाने आएगा? अरे नहीं भाई, वो प्यासा है, उसके प्याले में डाल दे। वो प्यासा है, उसकी प्यास बुझा दे, और हमारी प्यास भी बुझा देते हैं। आप खड़े हो जाइए अपने पाँव पर। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें।
اور جو آج اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں مانتا اپنا ہاتھ کھڑا کر دے. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں ان ساری تاثیروں کو جو بدلوں کے اندر، روح کے اندر، جان کے اندر انہیں تجھ سے دور رکھتی ہے، ان سب کو ڈھا دیتا ہوں. I command in the name of Jesus, leave this body. یسوع کے نام آزاد. خدا آپ کو برکت دے. آمین. ہلیلویا. زوردار تالی بجائیں. زوردار تالی بجائیں گے خدا کے خادم کے لیے کہ خدا اپنے خادم کو، اس کے خاندان کو کثرت سے کرے. میں بہت خوش ہو رہا تھا. سب میں تشریف رکھے. 3 نسلیں جو ہے، باپ بھی خدمت کر رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ہماری بیٹی ٹریٹمنٹ کھڑی ہو جائے. یہ بیٹی بھی خدمت کرتی، پوتے بھی، اور پوتے بھی خدمت کرتے ہیں. تو زوردار تالی بجائیں گے کیونکہ خدا کے کلام میں جیسا لکھا ہے، تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. نجات پانے کے بعد خداوند چھوڑتا نہیں بلکہ اپنے جلال کے استعمال کرتا ہے. آمین.